Hello everyone and welcome back to another video of political science. Today we will be discussing the social contract theory which was given by J.J. Rousseau or Rousseau. This is the third and last philosopher of this theory. The lecture is composed of two parts, part 1 and part 2. So starting with the introduction of this lecture, we are going to study the political backdrop. Rousseau was the third great exponent of social contract theory. He was a French philosopher. He was born in Switzerland. He was by birth a Swiss but adopted France as his country. So that's why he is a French philosopher, known to be a French philosopher. He lived in pre-revolutionary 18th century romanticism. अभी ये जिस टाइम में रह रहा था ना, तो अभी फ्रांस में रेवोल्यूशन नहीं आया था. इट वाज अ प्री रेवोल्यूशनरी एरा. So his philosophy led to the overall development of modern political, sociological and educational thought. इसके जो जितनी भी philosophy थी ना, that basically revived the development of political thought, future political thought. So, the social contract theory of Rousseau is contained in his two books, The Discourse on the Origin of Inequality, The Social Contract Theory, which was written in 1762. ये जो फर्स्ट वाला है ना, द डिस्कोर्स ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें बेसिकली इसने बताया है कि एक स्टेट में किस तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं एंड वाई देयर इज़ अ नीड टू इस्टेब्लिश अ परफेक्ट स्टेट जहाँ पे मॉरल boundaries ho, and there's a perfect political behavior. And the social contract theory, we are going to study this theory. द फाउंडेशन ऑफ रूसोस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी. थोड़ा सा पढ़ते हैं रूसो के बारे में कि बेसिकली व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ रूसोस पॉलिटिकल थॉट एंड what led to the formation of his political thought, or what is the basis of his political thought. So basically the foundation of Rousseau's political philosophy is based on the two following concepts. One is justice and the other is popular sovereignty. Justice का तो आप सबको पता है, but let me tell you what is popular sovereignty. Popular sovereignty is the government which is based on consent of the people. ऐसी government जहाँ पे लोगों की राय की अहमियत होती है एंड इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू द कंसेंट ऑफ द पीपल. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वोटिंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी है. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस और वो सारा. So these books, Rousseau defended justice and popular sovereignty in सब किताबों में. Rousseau's foundation is on these two concepts, और ये बेस करते हैं इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को. नेचर ऑफ रूसोस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी. तो हम पढ़ते हैं कि मतलब रूसो की फ़िलासफ़ी जो है उस पर क्या इन्फ्लुएंस था. व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑन रूसोस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी. सो रूसोस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हिज नेटिव कंट्री. वो फ्रांस में रहता था, तो उस टाइम जो फ्रांस था ना, फ्रांस एट दैट टाइम वाज सफरिंग अंडर डिस्पोटिक रूल ऑफ किंग्स. There was no rule of law. People suffered due to injustices, inequality and exploitation. There was kind of a disorder and instability everywhere in France. So there was denial of freedom, liberty. So this political thought was based on रूसो ने अपनी जो पॉलिटिकल थॉट थी उसने अपनी पॉलिटिकल थॉट बेस की थी रिवॉल्ट अगेंस्ट रीज़न. बिकॉज इन 18th सेंचुरी, उस टाइम जो है ना 18th सेंचुरी को डिस्क्राइब किया जाता था एज एन एज ऑफ एनलाइटमेंट, and it was an important feature of this age where most of the thinkers preferred enlightened despotism, reason, and Rousseau was against this thing. तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म. इसमें जो मोनार्क पावर वाज विद द मोनार्क इन एवरी फील्ड, एंड रूसो ऑन द अदर हैंड वांटेड पॉपुलर सॉवरेनिटी. वो चाहता था कि मतलब पीपल सॉवरन हो, मोनार्क सॉवरन ना हो. तो ये यूरोपियन की पॉलिसीज़ थी उस टाइम ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क. एंड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी द मोनार्क वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटेंड. एंड ये वो टाइम था जब मोनार्क के पास अपॉर्चुनिटी थी टू इन्हांस देयर पावर्स. सो दैट्स वाई रूसो वाज अगेंस्ट दिस एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, एंड दैट्स वाई his philosophy was in nature of revolt against reason.
सो 18th सेंचुरी रूसो वाज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ रेवोल्यूशन. इसको ये भी कहा जाता है प्रोग्नोस्टिकेटर्स, मतलब अ पर्सन हु कैन foretells एंड prophesizes अ फ्यूचर इवेंट. इसको इसलिए कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ रेवोल्यूशन बिकॉज इन ही वाज लिविंग इन फ्रांस एंड दैट वाज अ प्री रेवोल्यूशनरी एरा. और फिर बाद में फ़्रांस में रेवोल्यूशन आया था, तो इसने पहले ही अपनी फ़िलासफ़ी में ये सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया था दैट ये गवर्नमेंट इस तरह फेजेस से गुज़र के जाएगी एंड देन लेटर अ रेवोल्यूशन विल कम. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वो दैट वाज बिटवीन 1789 टू 1799. एंड देन लेटर ये इस दौरान अमेरिकन रेवोल्यूशन भी था एंड दैट वाज बिटवीन 1775 से 1783. एंड दिस वाज द रेवोल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन. इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ जस्टिस इन रूसोस फिलोसफी. मैंने आपको पहले भी बताया है दैट द फाउंडेशन ऑफ रूसोस फिलोसफी इज़ बेस्ड ऑन द टू कॉन्सेप्ट जस्टिस एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी. जस्टिस ऑक्यूपाइड एन इमिनेंट पोजीशन इन हिज पॉलिटिकल फिलोसफी. सो इसने ये किताब लिखी थी इन हिज सेकेंड वर्क, अ डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी. ही शेड लाइट ऑन अ मैन मेड इनइक्वालिटीज एंड जस्टिस. He explained those inequalities and injustices, and according to him that there are two kinds of inequalities. The first is natural, जो कि मतलब नेचर से होती हैं. बॉडी किसी की माइंड कमज़ोर होता है, किसी की बॉडी कमज़ोर होती है, एंड सो. तो द सेकेंड वन इज़ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड दीज आर ये कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज़ इन प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वेल्थ है, ऑनर है, पावर है. किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज़्यादा पावर है. कोई गरीब है, कोई अमीर है. किसी के पास ही इज़ प्रेस्टीजियस, उसके पास ऑनर ज़्यादा है, किसी के पास कम है. So according to Rousseau, the second kind of inequality are responsible for all evils. And this civilized man has developed unhealthy habits. बंदे ने, इंसान ने, ये बिकॉज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से इंसान ने अपनी आदतें बहुत ख़राब कर दी हैं. और इंसान के अंदर जो है ना, लस्ट फॉर पावर, डिज़ायर फॉर पावर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आती जा रही है. एंड दिस हैज़ क्रिएटेड द मेजर ईवल. एंड यहीं से जो है ना ये इनइक्वालिटी आई है, जो सेकंड काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है, विच इज़ द सोशल इनइक्वालिटी. सो अकॉर्डिंग टू रूसो मैन इज़ नेचुरली गुड, लेकिन ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इट हैज़ परवर्टेड हिज नेचर. मैन की नेचर ख़राब हो गई है. सो द गुड मैन कैन बी रिस्टोर्ड बाय क्रिएटिंग नेसेसरी कंडीशंस है. तो रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये डिमांड किया दैट ही डिमांडेड जस्टिस एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी. ओके, सो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. Rousseau defended the concept of equality and justice and popular sovereignty in his social contract theory. ये इनकी एक किताब थी और उसके अंदर इन्होंने ये सारे फीचर्स डिस्क्राइब किए थे. सो Rousseau's social contract theory is based on the following points that what is human nature. इसने डिस्क्राइब किया है कि what kind of human nature is, Rousseau's assumptions on state of nature, Rousseau's views on social contract and Rousseau's concept of sovereignty. ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो भी पैटर्न है ना, दैट इज़ सेम विच इज़ फॉलोड बाय ऑल द थ्री फिलोसफर, हॉब्स, लॉक एंड रूसो. तो लेट्स स्टडी द ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू रूसो. रूसोज व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, जैसे कि इफ़ वी कंपेयर द हॉब्स एंड लॉक व्यूज़ विद द रूसोज व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, तो हमने ये पढ़ा था कि हॉब्स ने एक बहुत बैड इमेज ड्रू की थी अबाउट ह्यूमन नेचर. ही एक्सप्लेन ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर. मैन इज़ कनिंग, ब्रूटिश, ईविल, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक. बट इफ़ यू टॉक अबाउट लॉक, लॉक ने एक जनरल इमेज ड्रॉ की थी एंड ही टॉक्ड अबाउट द गुड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन. ऐसे कहा जाता है कि रूसो जो है ना, इस ही स्टार्टेड एज एन हॉब्स बट एंडेड विद एन लॉक. मतलब उसके व्यूज़ पहले ह्यूमन के बारे में बुरे ही थे, क्योंकि इट वाज अ प्री रेवोल्यूशनरी एरा और वहाँ पे फ्रांस में जो थी ना मोनार्क सिस्टम था. सो देयर वाज काइंड ऑफ अ डिस्पोटिक गवर्नमेंट एट दैट टाइम इन फ्रांस. लेकिन लेटर आफ्टर रेवोल्यूशन ही बिलीव दैट मैन इज़ एसेंशियली गुड. सो इट इज़ ऑफन सेड दैट ही his concept and political thought about human nature ended on Locke. लॉक ने जो व्यू दिया था दैट सिमिलर टू रूसोज व्यू. तो
He said that man is essentially good and is good as long as he follows the natural instincts. तो इससे कहा था कि मैन जो है ना ये सेल्फ लव एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन करता है, म्यूचुअल हेल्प करता है, ही हैज़ सिंपथी, सिंपथेटिक होता है. ही सो रूसो बिलीव्ड इन गुडनेस ऑफ नेचुरल मैन एंड corruption of social man. He said that man by nature is not bad and corrupt, so it is the physical environment that makes man bad and corrupt. The goodness and badness of man depends upon the environment in which he lives. तो बैड सोशल अरेंजमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, अनजस्ट लॉज हैं, डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, सो ऑल दीज क्रिएट ईवल्स. तो वो कह रहा था रूसो के इन ऑर्डर टू मेक अ मैन मॉरली गुड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्वायरमेंट शुड बी चेंज्ड. हमें चाहिए कि हम अपना सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट को चेंज करें. ये तो लो लेवल अपनी राइटिंग्स में सराउंडिंग्स की बात कर रहा है, बट इन रियल सेंस ही वाज टॉकिंग अबाउट द स्टेट, कि हमें स्टेट की सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए. रूसो वांटेड अ रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट. ही वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ इक्वल्स जहाँ पे हर कोई इक्वल है. देयर इज़ नो इम्बैलेंस एंड इनइक्वालिटी बिटवीन ह्यूमंस, जो कि इंसानों में सोशल इनइक्वालिटीज़ डेवलप कर देती हैं रिगार्डिंग wealth, honor, power. So so as to eliminate these inequalities, the general will and the common interest should be the important feature of the state. हेयर देर्स मैंने आपको बताया है जनरल विल का कॉन्सेप्ट, और ये भी रूसो की इंटायर फ़िलासफ़ी पे बेस करता है. ही गेव दिस फिनोमेना ऑफ जनरल विल. इसने कहा इसका मतलब है कॉमन जो विल होती है लोगों की, कॉमन इंटरेस्ट. सो ही एम्फेसाइज्ड ऑन जनरल विल ऑफ द स्टेट. Unfortunately, this lecture cannot be concluded and completed in one video. So this is part 1, and we'll study the remaining part of this lecture in another video. So